Welcome students. In our last video we had completed models from grammar. Now in this video we will read our next chapter from book Behive, chapter 4, A Truly Beautiful Mind. This is a chapter about Albert Einstein. He was a great scientist, as we all know that. It is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted, like his interest in mathematics and physics, his humanitarian attributes. The title of this chapter makes one wonder about how can be a scientist's mind be beautiful. It can be so because he was a humanitarian. He advocated for peace and non-violence. That is why the title of this chapter refers to his beautiful mind. So we start a chapter. Page 46. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think the genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, in the 26-year-old published in quick succession of 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. In this chapter, we read about a young German civil servant. एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में बहुत से रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए, इन्वेंशंस किए और उनको एक जीनियस माना जाने लगा. उनका नाम जीनियस वर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो, उनका नाम जो था आइंस्टीन वो जीनियस वर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak is a word to talk about a person who is unusual, who don't look like or behave like others. So Albert Einstein was born on 14 March 1879. जर्मन सिटी में पैदा हुए थे बिना किसी इंडिकेशन के कि उनका फ्यूचर किस तरीके से डेस्टाइन हुआ है, वो क्या ग्रेट कॉज करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था. जैसे कोई ऑर्डिनरी बच्चा बर्थ लेता है वैसे कि वो एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह उन्होंने जन्म लिया था और उनको ये नहीं पता था कि उनका जो फ्यूचर है वो कितना किस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे डेस्टाइन हुआ है, क्या ग्रेट कॉज करने के लिए डेस्टाइन हुआ है. पर वो बहुत अनयूजुअल थे, इसलिए उनकी मदर उनको फ्रीक कहती थी. उनको लगता था कि उनका जो हेड है वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है. उनको लगता था कि वो और बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते और बच्चों की तरह नहीं लगते. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. जब वो 2.5 years के हो चुके थे, he still wasn't talking. वो तब तक बात नहीं करते थे. He could only utter some words. वो भी वो 2 बार बोलते थे, सिर्फ कुछ वर्ड्स ही वो बोल पाते थे. utter means को कुछ ही वर्ड्स वो बोल पाते थे. Einstein did not know what to do with other children. उनको ये नहीं पता था कि how to behave with other children. किस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ behave करना है, कैसे उनके साथ खेलना है, कैसे बात करनी है. तो दूसरे बच्चे उनको क्या था, उनके जो प्लेमेट्स होते थे जो उनके साथ खेलते थे वो उनको ब्रदर बोरिंग करके बुलाया करते थे. इसलिए वो अपने आप में ही रहने लग गए. वो अपने आप से ही बातें करना, खुद ही अकेले खेलना, उन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" जब उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे, जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा पैदा हुई थी तो उन्होंने उसको देख के कहा, फाइन ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं. तो व्हील्स वो उनको टॉय, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम मैकेनिकल टॉयज में निकलता था, व्हील्स कार वगैरह इस तरीके की टॉयज में निकलता था. तो उन्होंने जब अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा तो उनको एक टॉय की तरह लगी और he couldn't see the feet of his sister
वो अपने बहन के पैर नहीं देख सकते थे, तो उनको क्या लगा कि उसके पैर यहाँ नहीं है, तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। यानी वो इतना मैकेनिकल टॉयज़ के आदी हो गए थे कि उनको वो उनकी जो सिस्टर थी वो भी टॉय जैसी लगी, और उन्होंने जेन्युइनली वो क्वेश्चन पुट अप कर लिया। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को बुला के कहा था कि कोई भी प्रोफेशन वो चूज़ कर ले लेकिन वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to do. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur means जो अपने शौक को जो भी कोई चीज़ सीखता है वो अपने शौक के लिए सीखता है, नॉट फॉर प्रोफेशन। वो किसी प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं सीखता, सिर्फ अपनी हॉबी के लिए सीखता है। तो जब वो 6 इयर्स के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू डू दैट, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो ऐसा करे। तो उन्होंने सिर्फ एज अ हॉबी वायलिन सीखा बजाना, न कि प्रोफेशनल किसी कॉज की वजह से। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein एक अच्छे pupil थे, अच्छे student थे, इतने weak या इतने डल नहीं थे। वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए, उनकी फैमिली जो थी वो म्यूनिक में शिफ्ट हो चुकी थी जब वो 15 मंथ्स के थे, और उस समय उनके काफ़ी अच्छे स्कोर्स भी आया करते थे। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation means strict discipline. तो उनको स्कूल का strict discipline बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और इस वजह से उनका टीचर्स के साथ काफ़ी क्लैश भी हुआ करता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Stifled means suffocating. तो उनको स्कूल में उस टाइम इतना सफोकेटिंग फील होने लगा कि उनको स्कूल को ड्रॉप आउट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. Prolonged means continuing for a long time. तो कुछ सालों में अल्बर्ट के पेरेंट्स वहाँ से म्यूनिक से मिलान शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने अपने बच्चे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। लेकिन बहुत डिस्कशन के बाद में अल्बर्ट को इस बात की परमिशन मिल गई कि वो स्विट्ज़रलैंड में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जो क्यों उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना पसंद क्यों किया? बिकॉज वो सिटी जो थी वो जर्मनी जो था वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल मीन्स जहाँ आपको अपनी बात कहने की थोड़ी फ्रीडम हो, जो दूसरों की किसी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करता हो, तो वो लिबरल कहलाता है। तो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल मिलान था, स्विट्ज़रलैंड था, तो इसीलिए उनको लगा कि उन्हें जर्मनी में पढ़ना चाहिए। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Einstein was highly gifted in mathematics. Einstein mathematics में बहुत इंटेलिजेंट थे, फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में डिसाइड किया कि वो ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था या साइंस ही एक ऐसा फील्ड नहीं था जो उन्हें ज़्यादा अपील करता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ही डिवोटेड थे या फिज़िक्स के लिए ही डिवोटेड थे, या उनको सिर्फ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ही पसंद आती थी और वो किसी फील्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। नहीं, वो आर्ट, लिटरेचर, इसमें भी बहुत ध्यान देते थे। साइंस के अलावा भी उनको बहुत सी चीज़ें जो थी वो अपील करती थी। एक ऐसे हैंडसम यंग मैन, वॉलरस, अ शेप ऑफ मस्टैश, तो वॉलरस मस्टैश रखते थे, और वो और भी साइंस, ऐसा नहीं था कि वो एक साइंस के इंटरेस्टेड स्टूडेंट जैसे दिखते थे, तो लेकिन उनको आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, साउंड, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट था। जो सिर्फ साइंस ही कैसा फील्ड नहीं था जो उनको फील करता था। He also felt a special interest in a fellow student, Minerva Merrick, whom he found to be a clever creature. उनका साइंस के अलावा
एक और इंटरेस्ट फील्ड था, एक और इंटरेस्ट जोन था जो एक गर्ल थी मिलेवा मैरिक, जो उनको बहुत क्लेवर थी, जिसे वो खुद एक क्लेवर टीचर मानते थे. दिस यंग सर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Young sir means belonged to Serbia. सर्बिया से थी इसीलिए उनको सर्ब कहा गया. तो ये जो यंग सर्ब थी वो स्विट्जरलैंड इसीलिए आई क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो उन कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी जहाँ पे विमेन स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट को उतना रेपुटेशन, उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, उनको डिग्रेशन मिलता था वहाँ, तो इसीलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड आना पसंद किया. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Ally means a friend, associate. Philistines means a person who don't like to talk about art, literature, songs, sound, music. ठीक है, जो आर्ट लिटरेचर को पसंद नहीं करता वो फिलिस्टीन. तो आइंस्टीन को मिनेवा में अपना एक एसोसिएट, अपना एक फ्रेंड दिखा जो खुद फिलिस्टीन्स को पसंद नहीं करता था, यानी जिसका झुकाव भी आर्ट और लिटरेचर की तरफ था. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at boards. क्योंकि उस समय पे क्या होता था, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक वगैरह को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, तो किसी का इंटरेस्ट उसमें हो तो ये बात अच्छी नहीं मानी जाती थी. तो आइंस्टीन का इंटरेस्ट उसमें था तो ये बात उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को पसंद नहीं आती थी. तो वहाँ जहाँ फैमिली और रिलेटिव्स आपके कॉन्स्टेंटली ऑपोजिट है, वहाँ आपको एक ऐसा कंपेनियन मिल जाए जो आपकी पसंद को साझा करता हो, आपकी ही पसंद को पसंद करता हो, आपके जैसा ही हो, तो आप उसमें एक एसोसिएट ढूंढते हैं. इसीलिए वो मिलेवा मैरिक में अपना एक एसोसिएट, अपना एक फ्रेंड ढूंढने लगे. द कपल फेल इन लव. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." अब इतना फ्रेंड्स बने, इतना एक दूसरे से पसंद मिलती है, एक दूसरे से आप बात करते हो, तो जो कपल था दे फेल इन लव, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया. उनके लेटर्स जो थे वो एक्सचेंज हुए. वो अपने लेटर्स में कुछ अपनी फीलिंग्स लिखते थे, कुछ अपने साइंटिफिक वर्क्स के बारे में लिखते थे. उसके एक एग्जाम्पल हमें यहाँ हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि आइंस्टीन ने ऐसा लिखा कि वो उस दिन का वेट कर रहे हैं, या कितना अच्छा वो दिन होगा जब हमारा और तुम्हारा जो वर्क है रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी उनका एक फील्ड था जिसमें वो काम कर रहे थे, फिजिक्स का, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो उस रिलेटिविटी पे हमारा जितना भी वर्क है वो दुनिया के सामने आएगा एज अ विक्टोरियस कंक्लूजन, तो सबके सामने सक्सेसफुली आएगा. तो मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि वो दिन कितना अच्छा होगा. तो ये उनके लेटर का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वो दोनों अपने लेटर्स में साइंटिफिक अपने वर्क के बारे में बात करते थे, अपनी टेंडरनेस, अपनी नाजुक फीलिंग्स के बारे में भी बात करते थे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902. Was a technical expert in a patent office in Bern. Bern is a city in Germany. In 1900, at the age of 21, जब वो 21 साल के हुए, अल्बर्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए और अनएम्प्लॉयड रहे, नौकरी नहीं थी उनके पास. उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, प्राइवेट लेसन्स लिए, और 1902 में फाइनली उनको एक जॉब मिला. जो क्या जॉब था, बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में वो काम करने लगे. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. उनका काम क्या था, पेटेंट ऑफिस में वो काम करते थे. तो उनका काम क्या था, दूसरों के इन्वेंशंस को लिखना या उनको रजिस्टर करना और उनको पेटेंट करना, ये उनका काम था. तो जब वो किसी और के इन्वेंशंस को पेटेंट कर रहे थे, उसी समय वो सीक्रेटली अपने भी कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहे थे. इसीलिए उन्होंने अपनी बर्न के ऑफिस टेबल को उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा, क्योंकि उसमें सीक्रेटली उनके सारे पेपर वर्क था जो वो अपनी थ्योरी पे काम कर रहे थे. तो वो सारा उस डेस्क में रहता था, इसलिए उन्होंने उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा.
One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. उनका जो एक फेमस 1905 में एक फेमस पेपर आया जिसमें आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सपोज किया, उसको एलैबोरेट किया, जहाँ उन्होंने लिखा कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट मीन्स मेजर इन इटसेल्फ, अपने आप में ही अलग अलग मेजर रखते हैं. ठीक है, दोनों का कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह, रिलेटिविटी नहीं है. उन्होंने एग्जाम्पल दिया, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, चाहे दो एक सी क्लॉक्स हैं, दोनों एक सी क्लॉक हैं, दोनों में हमने सेम टाइम सेट कर दिया, बट अगर एक दोनों क्लॉक्स कभी भी सेम टाइम नहीं शो करेगी, हमें वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ आगे पीछे होंगी, या तो एक क्लॉक जो है वो थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही होगी और एक उसके पीछे होगी. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी को उन्होंने एक्सप्रेस किया. उसके लिए वो एक एग्जाम्पल मास और एनर्जी का फॉर्मूला दिया, E is equal to mc square, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन में E stands for energy, m stands for mass and c stands for the speed of light in a vacuum. ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से रिलेटिविटी का एग्जाम्पल दिया. वो एक एग्जाम्पल ये भी देते हैं, when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. यानी वो एक एग्जाम्पल देते हैं क्लॉक्स का कि अगर दो क्लॉक हैं, सेम टाइम सेट कर दो, सेम क्लॉक है, बट फिर भी वो हमें सेम समय नहीं बताएंगे, वो सेम टाइम नहीं बताएंगे. कोई ना कोई एक क्लॉक एक दूसरे से या तो फास्ट मूव कर रही होगी या पीछे होगी. इसका ही वो एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप किसी फेवरेट गर्ल की कंपनी में बैठे हो, चाहे आप 2 मिनट बैठोगे, जब 2 घंटे बैठोगे आपको लगेगा 2 ही मिनट हुआ है. लेकिन अगर आपको हॉट स्टोव पर बिठा दिया जाए 2 मिनट के लिए, लेकिन आपको लगेगा कि वो 2 मिनट भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे. तो ये उन्होंने टाइम और डिस्टेंस के साथ रिलेटिविटी की थ्योरी को जो अपने एक्सप्लेन किया. When Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन वर्ल्ड में अपने फील्ड में फिजिक्स की लेटेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उस समय उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी, वो भी फेल होना स्टार्ट हो गई थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलेवा को पसंद करते थे, उससे उन्होंने शादी करने का सोचा अपने दिमाग में. उन्होंने सोचा था कि जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो उससे शादी कर लेंगे, बट उनकी मदर को ये चीज़ पसंद नहीं थी. उनकी मदर को इसलिए मिलेवा पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनको मिलेवा जो है वो 3 years ओल्ड है आइंस्टीन से, तो उनको लगा कि 3 साल बड़ी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है आइंस्टीन से, तो वो इसलिए मिलेवा से खुश नहीं थी. वो मिलेवा से नहीं चाहती थी कि आइंस्टीन की शादी हो. दूसरा कारण क्या था कि मिलेवा बहुत इंटेलिजेंट थी, शार्प थी अपने दिमाग से, तो उनको ये लगता था कि वो शी वॉज टू इंटेलिजेंट टू बी अ वाइफ. वो एक वाइफ बनने के पर्सपेक्टिव में बहुत इंटेलिजेंट है. तो वो ये एग्जाम्पल वो अपने बेटे को एग्जाम्पल देती थी कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, तुम्हारी तरह ही एक किताब है. तो दो एक जैसे लोग जो हैं वो आपस में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता था कि मिलेवा जो है वो एक सही चॉइस नहीं है आइंस्टीन के लिए. सो आइंस्टीन ने अपनी जो वेडिंग थी वो उस टाइम के लिए उसका जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year.
faltered means became weak. तो फाइनली उस कपल ने, मिलेवा और आइंस्टीन ने 1903 में शादी कर ली, उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो मिलेवा थी वो बहुत, उनके जो एम्बिशंस थे, बहुत इंटेलिजेंट थी, वो भी आइंस्टीन के साथ इस सब थ्योरी पे काम कर रही थी, उनके भी कुछ एम्बिशंस थे, पर वो उन एम्बिशंस को एज अ हाउसवाइफ पूरा नहीं कर पा रही थी। तो वो हाउसवाइफ, उनके बच्चे भी हो गए, तो वो हाउसवाइफ बन गई या घर के काम संभालने में वो अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत अनहैप्पी हो रही थी, क्योंकि उनके एम्बिशंस पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी वो उनको फेयरली डील नहीं कर पा रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि उनको बहुत वो अनहैप्पी रहने लगी, वो खुश नहीं रहने लगी अपनी मैरिड लाइफ से। तो कुछ समय बाद उनकी जो वेडिंग थी वो टूट गई, फाइनली उन्होंने डाइवोर्स ले लिया 1919 में। बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद में, आफ्टर अ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया एक दूसरे से। फिर आइंस्टीन ने कुछ सालों बाद एल्सा, अपनी कजन से शादी करी, उसी साल, सेम ईयर। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Coincided means at the same time. तो जब उनका, जैसे उनकी लाइफ में चेंज हुआ, मिलेवा गई, एल्सा आई, उसी समय वर्ल्ड में उनकी फेम भी जो था वो बढ़ रहा था, वो फेमस होने लगे थे। In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, जिसने ग्रेविटी की इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड कराई। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1990 में जो सोलर एक्लिप्स और सन एक्लिप्स हुआ, उसने उनकी इस थ्योरी को बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ कर दिया, करेक्ट प्रूफ कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. आइंस्टीन ने करेक्टली कैलकुलेट किया पहले से ही कि जो स्टार्स हैं उनकी लाइट जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कितनी डिफ्लेक्ट हो सकती है, अपना डायरेक्शन बदल सकती है। और न्यूज़पेपर्स ने उनके इस काम को साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में, उनको बहुत से ऑनर्स मिले, उनको बहुत से इन्विटेशंस मिले पूरी दुनिया से, उनको बहुत उनका अपलॉड किया गया, उनको बहुत प्रशंसा की गई, प्रेज किया गया प्रेस के थ्रू। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. Emigrated means leave one's own country to settle in another country permanently. तो अपनी ही कंट्री को छोड़ना किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए। तो जब नाजीज, जर्मनी में नाजीज पावर में आए तो 1933 में आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एमिग्रेट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. तो कुछ सालों बाद, 5 सालों बाद, न्यूक्लियर फिशन, फिशन मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सेंट्रल एट अ पार्ट ऑफ एटम, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर फिशन का जो कॉन्सेप्ट आया, उसकी जो डिस्कवरी हुई 5 सालों बाद बर्लिन में, उन्होंने अमेरिकन फिजिसिस्ट को अपसेट कर दिया। उनको लगने लगा कि अगर ये इस चीज़ का, इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, तो सारे अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो इस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट हो गए, इस थॉट को लेके बहुत अपसेट हो गए कि ऐसा कुछ मिसयूज़ हो सकता है। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. बहुत से उनमें से फासिज्म को उन्होंने अडैप्ट कर लिया जैसा आइंस्टीन ने किया, और बहुत से लोगों को ये चिंता होने लगी कि कहीं नाजीज ने इससे कोई एटम बम ना बना लिया हो और उसका मिसयूज ना करें वो पॉपुलेशन के ऊपर। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned, अपने कलीग्स के कहने पे, अपने फ्रेंड्स के कहने पर आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो समय थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अर्ज किया, जिसमें उन्होंने नाजीज के इस बारे में या न्यूक्लियर फिशन के बारे में अमेरिका को वार्न करते हुए एक लेटर लिखा।
A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. इस तरीके का कोई भी जो बॉम्ब है, अगर वो किसी पोर्ट में एक्सप्लोड हो जाता है तो वो पूरे पोर्ट को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, बल्कि उसके आसपास की जो सराउंडेड टेरिटरी है वहाँ तक भी उसका इफेक्ट जाएगा और वो उसको भी डिस्ट्रक्ट करेगा. तो इस तरीके से उन्होंने उस एटॉमिक बॉम्ब, उस न्यूक्लियर फिशन की जो थ्योरी थी, डिस्कवरी थी, या जो एटॉमिक बॉम्ब का जो उनके दिमाग में था डाउट कि हो सकता है कि नाजीज उसको यूज़ करें और उसका मिसयूज़ करें, तो उन्होंने इस बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उनको इस बारे में वार्न किया और उनको ये बताया, उसका इफेक्ट, उसका डिस्ट्रक्शन इफेक्ट जो था वो बताया. His words did not fail to have an effect. उनके शब्दों का अमेरिकन प्रेसिडेंट पे, अमेरिका पे बहुत इफेक्ट हुआ. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो अमेरिकन ने एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप किया और उसको हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में ड्रॉप किया. आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टीन, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ था. तो उस डिस्ट्रक्शन से वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव. मिसिव मीन्स एक लॉन्ग लेटर जो पब्लिकली लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस. उन्होंने इस समय पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उसमें उन्होंने लिखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया इस बारे में. और लाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. जैसा रूजवेल्ट को लिखे लेटर का इफेक्ट हुआ था अमेरिका पे और तुरंत उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किया. इस पब्लिक मिसिव का, इस लॉन्ग लेटर का अमेरिका पे इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ. दिस लेटर wouldn't bear a fruit. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. पर अगले कुछ 10 years में आइंस्टीन पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव होने लगे. Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. Agitating means to make other people feel very strongly about some ideas. किसी को किसी आइडियाज़ के बारे में बहुत स्ट्रांगली समझाना, उनको उस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि हमको वेपन्स, आर्म्स मीन्स वेपन्स, कि हम कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं और पीस को, डेमोक्रेसी को बना के रखें. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Visionary means who can foresee future, जो फ्यूचर में आगे देख सकता है किस तरीके से बिल्डअप करना है फ्यूचर को. पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंटली. तो जब आइंस्टीन 1955 में 76 की एज में ख़त्म हुए तो ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी. उनको एक विजनरी मान के सेलिब्रेट किया गया एंड वर्ल्ड सिटीजन बनाया गया एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस. यानी साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही एक विजनरी जो फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते थे, उसको इंटेलिजेंट वे में फोरसीन कर सकते थे. तो उनको वो वर्ल्ड सिटीजन बनाया गया. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. नाउ इट्स टाइम टू टेक क्वेश्चन आंसर्स. पेज नंबर 50, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Here are some headings for paragraphs in the text. Write the numbers of the paragraphs for each title against the heading. The first one is done for you. कुछ पैराग्राफ्स की हेडिंग है, यानी कौन से पैराग्राफ में क्या इंसिडेंट प्लेस हुआ था वो है, तो हमें उसको पैराग्राफ के नंबर वाइज अरेंज करना है. जैसे आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन कौन से पैराग्राफ में, 9th पैराग्राफ में. एग्जाम्पल हमारे लिए सेट हुआ है. आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, पैराग्राफ 7. द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, पैराग्राफ 3. Mileva and Einstein's mother, paragraph 10. A letter that launched the arms race, paragraph 15. A test straw full of ideas, paragraph 8. Marriage and divorce, paragraph 11. Next, second question. Who had these opinions about Einstein? ये आइंस्टीन के बारे में किसकी क्या ओपिनियन थी? He was a boring. उनको ब्रदर बोरिंग कौन बोलता था? His playmates.
He was stupid and would never succeed in life. Headmaster, उनके headmaster ने उनके father को बुला के ही बोला था. He was a freak. His mother used to call him as a freak. Explain what the reason for the following are. ये जो statements हैं इनके reason क्या है? Einstein leaving the school in Munich for good. म्यूनिक का स्कूल उन्होंने क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन ऑफ दैट स्कूल. म्यूनिक के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के कारण उन्होंने म्यूनिक का स्कूल छोड़ा था. आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक. स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे म्यूनिक की बजाय, बिकॉज इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक. लिबरल एटमोसफेयर था वहाँ ज़्यादा. आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एंड एलिक. आइंस्टीन को एक एसोसिएट क्यों दिखता था उनमें? Like him, she also disapproved of the Philistines. मूवी आर्ट और लिटरेचर को पसंद करती थी. What do these tell you about Einstein? ये सब हमें आइंस्टीन के बारे में क्या बताता है? That he loved freedom, he was a liberal and a cultured person. Question 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? आइंस्टीन ने अपनी desk drawer को पेटेंट ऑफिस में क्या कहा था? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स ये कहा था. और क्यों कहा था? क्योंकि उनके उस डेस्क ड्रॉअर में जब वो काम कर रहे थे, उनके ऑफिस के डेस्क ड्रॉअर थी वो, और उसमें वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को पेटेंट तो करते ही थे और सीक्रेटली अपने इन्वेंशंस या अपने आइडियाज़ के पेपर्स को भी उसमें कनेक्ट करते थे. इसलिए उन्होंने उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा. क्वेश्चन 5. व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने लेटर क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि वो उनको वार्न करना चाहते थे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू वार्न हिम अमेरिका अबाउट द नाजीज डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी एंड न्यूक्लियर फिशन. क्योंकि वो न्यूक्लियर फिशन की थ्योरी और उसके एडवर्स इफेक्ट को अमेरिका को बताना चाहते थे कि उसकी क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं. ये उनको बताने के लिए, वार्न करने के लिए उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा. 6. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? He was completely shaken by that incident. वो बहुत ज़्यादा हिल चुके थे उस इंसिडेंट से. उनको पीस और नॉन वायलेंस पसंद था, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हिल गए थे. इसीलिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जहाँ उन्होंने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ पर बैन लगाने की या उनको यूज़ ना करने की अर्ज किया लोगों से, एजुकेट किया लोगों को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं और पीस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दें. Why does the world remember Einstein as a world citizen? क्यों उनको एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह याद रखेंगे? उनके साइंटिफिक इन्वेंशंस तो है ही. उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फील्ड में जो जो रेवोल्यूशनरी काम किया वो सब तो है ही, बट वो एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे. वो पीस को एडवोकेट करते थे, वो नॉन वायलेंस डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते थे और वो एक विजन रखते थे. इसीलिए वो लोगों को उन्होंने एजुकेट किया, कैंपेन चलाया वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए कैंपेन चलाया. तो और फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट करना, इंटेलिजेंट वे में प्रिडिक्ट करना, उनको एक विजनरी माना गया. इसीलिए उनके इन सब कामों को देखते हुए उनको एक वर्ल्ड सिटीजन माना गया. क्वेश्चन 8. Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. ये आइंस्टीन की लाइफ के सारे फैक्ट्स इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको, यानी जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में लिखते जाएंगे. जैसे आइंस्टीन पब्लिशेस, तो फर्स्ट जो आएगा, आइंस्टीन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्ब. फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. फिर सेकेंड हो जाएगा Einstein attends a high school in Munich. Third, Einstein family moves to Milan. Tired of the school regimentation, Einstein withdraws from school. Einstein joins the university in Zurich where he meets Mileva. He works in a patent office as a technical expert. Einstein publishes his special theory of relativity. He provides a new interpretation of gravity. Next, 9th, he is awarded the Nobel Prize in Physics. 10th, when Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. 11th, Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb.
एंड नेक्स्ट आइंस्टीन डाइज। 12th स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, जो इंसिडेंट पहले हुआ वो पहले और उसके बाद आगे बढ़ते हुए सीरियल में हमें लिखना है। ठीक है, आई फिनिश द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स so you all can write them out in your notebook. Please note it down in your notebook as your home assignment. Now we'll meet in our next video. Till then, stay safe and thank you for watching.